Hello everyone, I am Ritika Susgar, Assistant Professor IT Department. So in the course of Artificial Intelligence, which is a elective 2, so we started our Unit 1. Okay, so Unit 1 is based on Introduction to the AI and Search Technique. So in that we already discussed about the introduction part of Artificial Intelligence. So second concept is the search technique. Okay, so there are different search strategies in Artificial Intelligence like uninformed search and informed search. So in the uninformed search, there are three types of searching techniques are used. That is BFS, DFS, and iterative depth first search. Okay. So the first type of the uninformed search technique is the breadth first search. So in this video, we are going to discussing about the breadth first search with example in a artificial intelligence. So let us discuss here. Okay, so in the artificial intelligence, there are two types of search strategies. First is the uninformed search, and the next is the informed search. Okay, so in the uninformed search, which is also called as the blind search, so it is named so because there is a information only about the problem definition. जो भी हमारे पास given problem होगा उसके लिए वो information provide करेगा and related to the states. ओके जितनी number of हमारे पास states होंगे given उसके related ही वो क्या करेगा search strategies provide करेगा. ओके in the uninformed search. ओके सो अगर यहाँ पे मेरे पास अगर 5 number of states है, so according to this 5 number of states वो क्या करेगा हमारे solution को find out करेगा. ओके So it can be divided into the three main types: breadth first search, depth first search, and iterative deepening depth first search. And the next thing is the informed search. The informed search algorithm is more useful for the large search space. So it is used the idea of heuristic search technique. Okay, we can use the informed search for the heuristic. Uninformed search technique. So जिसके अंदर है BFS, DFS and iterative deepening DFS. Okay. So first is the BFS, that is the breadth first search, which BFS is also stand for the breadth first search. Is a vertex based techniques for finding the shortest part in the graph. Okay. So it is use the queue data structure. अगर हम BFS को use करते हैं तो कौन सा data structure को use करेगा queue data structure, which follows the first in first out. So in BFS, one vertex is selected at a time. Vertex is means what? ये जो nodes है A, B, C, D, E and F. So these are the vertex is selected at a time when it is visited, and the mark then it adjacent are visited and stored in the queue. Okay. सो ए हम वर्टेक्स कंसिडर करेंगे, उसका एडजेसेंट नोड कौन से इसके बी एंड सी, उसको हमें क्या करना है विजिट करना है एंड स्टोर करना है क्यू के अंदर. ओके सो इट्स स्लोअर दैन द डीएफएस. सो अगर हम बीएफएस को यूज़ करते हैं सो बीएफएस इज स्लोअर दैन द डेप्थ फर्स्ट सर्च. सो एग्जाम्पल है यहाँ पे बीएफएस का. अगर हमें सर्च करना है हर एक वर्टेक्स को हमें क्या करना है विजिट करना है बाय यूजिंग द क्यू डेटा स्ट्रक्चर. सो आउटपुट कैसे होगा ए बी सी डी ई एंड एफ. ओके सो इस तरह से हमें आउटपुट जनरेट होगा. हमें क्या करना है बाय यूजिंग BFS सर्च टेक्निक. ओके फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ इन द गिवन ग्राफ. सो सी हियर देयर इज वन एग्जांपल. सो स्टेप 1 इज व्हाट इनिशियली फ्रीज कंटेन. ओके सो यहाँ पे हमने एक फ्रीज कंटेन यूज किया है जो कि क्यू डेटा स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा, which follows the queue data structure. So first हमने वर्टेक्स चूज किया है A. So A को हम क्या करेंगे फ्रीज करेंगे मीन्स और ऐड करेंगे क्यू के अंदर. The initially freeze contains only one node correspond to the source state as a A. Then A is removed from the freeze. ओके ए को हम क्या करेंगे रिमूव करेंगे मीन्स आउटपुट के अंदर क्या हो जाएगा ए हमारा कंसिडर हो जाएगा. ओके ए इज रिमूव फ्रॉम द फ्रीज, नोड इज एक्सपांडेड एंड इट चिल्ड्रंस इज अ बी एंड सी. सो ओके सो देखो वर्टेक्स इज सिलेक्टेड एट अ टाइम व्हेन इट इज विजिटेड. ए को अगर हमने विजिट किया है एंड द मार्क देन इट एडजेसेंट्स आर विजिटेड एंड स्टोर्ड इन द क्यू. सो ए के एडजेसेंट नोड कौन से है बी एंड सी. सो ए को हम क्या करेंगे विजिट करेंगे मीन्स मार्क करेंगे एंड उसके एडजेसेंट नोड कौन से है बी एंड सी. सो
बी को हमने इंसर्ट किया, देन सी को हमने इंसर्ट किया. सो फर्स्ट बी एंड देन सी. ओके, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. सो यहाँ पे हमने क्या किया, इंसर्ट किया है. यहाँ से हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे एज अ क्यू डेटा स्ट्रक्चर. फर्स्ट इन, जो फर्स्ट इन हुआ है वो फर्स्ट आउट होगा. सो अगर मैंने बी को पहले इंसर्ट किया है तो बी पहले आउट हो जाएगा, देन सी. ओके, सो ए को हमने विजिट किया, देन बी को मुझे डिलीट करना है. जो मैंने इंसर्ट किया था पहले, बी को हम रिमूव करेंगे. सो ए के बाद हमने कौन से नोड को विजिट किया है, यहाँ पे बी नोड को हमने विजिट किया. ओके, सो बी के एडजेसेंट नोड कौन से है, डी एंड ई. सो डी को हमने इंसर्ट किया, देन ई को हमने इंसर्ट किया है. ओके, सो फर्स्ट आउट क्या होगा यहाँ से, सी. सो सी को हम क्या करेंगे, विजिट करेंगे. ओके, सो नेक्स्ट पार्ट भी हमारा क्या है, विजिट हो जाएगा सी नोड. सी के एडजेसेंट नोड कौन से है, तो यहाँ पे देखो डी और ई तो ऑलरेडी है. सो अगेन फ्रीज के अंदर इंसर्ट किया है सी के एडजेसेंट नोड्स डी एंड जी. सो नोड सी इज रिमूव. सो ए इज विजिटेड फर्स्ट, देन बी इज विजिटेड एंड देन सी इज विजिटेड फ्रॉम द फ्रीज and remove from the freeze and it is expanded. So its child nodes are D and C are added to the back of the freeze. Again जो फ्रीज का फर्स्ट पॉइंट क्या है, D. सो D को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे एंड उसको विजिट करेंगे. सो D को विजिट करने के बाद D को हम विजिट करेंगे. सो यहाँ पे नोड्स क्या होंगे, फर्स्ट इज A, देन B, देन C एंड देन लास्ट में D. उसके एडजेसेंट नोड्स कौन से हैं, सो प्रीवियस क्या था, डी एंड जी. डी एंड जी, लास्ट में डी के एडजेसेंट नोड क्या है, सी एंड एफ. ओके, देन फ्रीज में से कौन सा एलिमेंट डिलीट होगा, फर्स्ट आउट इज अ ई. ई नोड को हम क्या करेंगे, विजिट करेंगे. तो यहाँ पे देखो ए, बी, देन सी, देन डी एंड लास्ट में हमने क्या फ्रीज डिलीट किया, यहाँ से ई को हमने डिलीट किया. तो ई भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे विजिट हो जाएगा. सी, डी एंड ई. अगेन डी के बाद, ई के बाद हमारा कौन सा एलिमेंट है, डी, जो कि ऑलरेडी विजिटेड है. देन डी के बाद कौन सा है, जी. तो जी को हम चेक करेंगे. ओके, सो ये होगा हमारा. तो हमें क्या करना है, इनिशियली अगर हमारा ए नोड है और इनिशियल हमारा ए नोड है एंड हमें गोल स्टेट है हमारे पास जी. सो जब तक कि जी नहीं मिलता तब तक कि हमें क्या करना है, सर्च करना है. ओके, सो ई के बाद क्या होगा हमारा, जी. ओके, सो अगर मुझे गिवन अगर होता कि गोल स्टेट जो है ये अगर मेरा एच की तरफ है, ओके, सो जब तक मुझे एच नहीं मिलता तब तक कि मैं क्या करूँगी, उसको सर्च करूँगी बाय यूजिंग द ब्रेथ फर्स्ट सर्च. So D is expanded. Okay, B and F are put into the open. So step C, G is selected from the expansion, is found to the goal node. So the algorithm return the path A C G by following the parent point. Okay, so algorithm कैसे return करेगा, A C G by following the parent pointers of the node correspond to the G. Okay, A C and G. एंड द एल्गोरिथम इज टर्मिनेटेड. ओके, सो दिस इज अ गोल स्टेट ए टू जी. हमें क्या मिला, ये वाला पाथ मिला है. सो दिस इज अ एल्गोरिथम फॉर द बीएफएस. मैम फर्स्ट ए नोड से हमने स्टार्ट किया. ओके, यस मिस ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ये जो कंसेप्ट है ये स्लो सर्चिंग प्रोसेस होगा फिर. यस, हाँ, स्लो सर्चिंग प्रोसेस है. बीएफएस के कंपैरिजन में डीएफएस के कंपैरिजन में बीएफएस क्या है, स्लो प्रोसेस है, क्योंकि हर एक वर्टेक्स को वो चेक कर रहा है यहाँ पे. ओके, मुझे क्या करना है, ए टू जी तक रीच करना है. सो सारे एलिमेंट्स बी टू सी, देन इसके एडजेसेंट नोड, देन इसके एडजेसेंट नोड, हर एक एडजेसेंट नोड को चेक करना पड़ेगा. ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फॉर अ बीएफएस बाय यूजिंग द क्यू डेटा स्ट्रक्चर. थैंक यू.